ہوں ابھی گھر میں جانا، جب بسترے سراہٹ پہ سونا، سونے سے پہلے لائٹ بند ہوگی، آنکھوں کا آنکھیں بند کر کے ذرا دل کی تصورات کی کھڑکیوں کو کھولنا، پھر سوچنا میں نے کلمہ جناب محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے، نماز حنفیوں کی پڑھتا ہوں، میں نے کلمہ جناب محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے، شریعت حنفیوں کی مانتا ہوں، میں نے کلمہ جناب محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے، اذان حنفیوں کی ہوتی ہے، میں نے کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے، میری فوتگی حنفیوں کی ہوتی ہے، میں نے کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے، میرے پیدا ہونے سے قبر کے اندر دفن ہونے تک ایک بھی سنت کے مطابق عمل نہیں ہے۔ فیصلہ کرنا کہ محمد الرسول اللہ کا غلام تو ہے یا مسلک اہل الحدیث محمد کے غلام ہے۔ بلا تخیر بلا تمہید میں دعوت خطاب دینا چاہنا، دیوبندی مسلک نو چھوڑ کے مسلک حق اہل حدیث میں قبول کرنے والے خود اور مدرسہ سمیت انہوں نے طلباء الحمدللہ اہل حدیث مسلک انہوں نے قبول کیتا ہے۔ میں دعوت خطاب دینا چاہنا فضیلت الشیخ مولانا سہیل معاویہ ہاشمی صاحب کا دیوبندی، اللہ تعالیٰ انہیں قوت بازو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کی خدمت توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ العظیم۔ کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے یکتا ہے اکیلا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ معزز سامعین حضرات، سٹیج پر مسلک حقہ کے علماء کی تعداد کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ مجھے اس اجتماع کے اندر آپ احباب سے چند باتیں کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، پھر ہمیں عزت عطا کرنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اس کا ایک مقصد ہے کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، تم اپنے رب العالمین کو سجدہ کرو، اپنے رب العالمین کی تعریف و حمد و ثنا کرو۔ آئیے قرآن مقدس انسان کو بار بار اپنی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ مسلک اہل الحدیث، میں نے مسلک اہل الحدیث کے اندر شامل ہوا ہوں، کسی دولت کی بنا پر نہیں، شہرت کی وجہ سے نہیں، خطابت کی وجہ سے نہیں، حالانکہ میں نے شہرت کو شہرت پر قبول، میں نے شہرت کو اپنی جو ہے قربانی دی ہے، میں نے دولت کو جو ہے قربان کیا ہے، میں نے اپنی خطابت کو قربان کیا ہے۔ میں نے مسلک دیوبند کے سٹیج پر 11 سال خطابت کی ہے۔ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، پنجاب کے اندر کوئی ایسا ضلع نہیں ہے جہاں پہ سہیل معاویہ نے جا کر بیان نہ کیا ہو، لیکن یہ ساری خطابت چھوڑی ہے، اپنی شہرت کو چھوڑا ہے، اپنے جو ہے سارے معاملات کو قربان کیا ہے۔ صرف غرض یہ تھی میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، صرف غرض یہ تھی دنیا سے جائیں تو جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے، شفاعت کبریٰ ان کے ہاتھوں سے ہمیں نصیب ہو جائے، حوض کوثر کا پیالہ ان سے نصیب ہو جائے، کیونکہ اللہ نے وہ رسول ہمیں عطا فرمایا ہے جس جیسا کائنات میں کوئی رسول نہیں ہے۔ اللہ نے وہ پیغمبر ہمیں عطا فرمایا ہے جس جیسا کائنات میں کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا ہے
जिस जैसा कायनात में कोई नबी नहीं है। मेरा मालिक इरशाद फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपका हर आने वाला दिन आपके गुजरे हुए दिन से बेहतर होगा, आपका हर आने वाला वक्त आपके गुजरे हुए वक्त से बेहतर होगा, आपका हर आने वाला पल आपके गुजरे हुए पल से बेहतर होगा। अल्लाह किसी नबी के बारे में नहीं कह रहा है, अल्लाह ने किसी रसूल को ये नहीं कहा है, सिर्फ एक हस्ती इस कायनात के अंदर है जिसे इमाम आज़म जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, जिसे शफी आज़म जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, जिसे रसूल आज़म जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। रब्बुल आलमीन कहते हैं हमने आपकी अज़मत को बुलंद कर दिया है, हमने आपके वक़्त को बुलंद कर दिया है, आपके आने वाले वक़्त को आपका जो है अफजल तरीन वक़्त बना दिया है। या अल्लाह ये कैसे हो सकता है? किसी को क्या पता कि कल क्या होगा, किसी को क्या पता कि कल क्या होगा, लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आप कुरान मुकद्दस को पढ़ना शुरू कर दीजिए, कुरान आपको बताएगा एक हस्ती जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा है, अहमद मुजतबा है, मकीन गुंबदे खजरा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ अक़दस है, जिसके बारे में रब कहते हैं अभी कायनात में कोई चीज पैदा नहीं हुई है। अल्लाह फरिश्तों को जमा करते हैं ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, कुरान मुकद्दस की आयात की तिलावत करते हैं, यासीन वल कुरआनिल हकीम की तिलावत करते हैं। अभी कायनात में कोई चीज पैदा नहीं है। मेरा रब जो है रूहों से खिताब करता है अलस्तु बिरब्बिकुम, जिसने जवाब दिया उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। अल्लाह ने कायनात के सारे नबियों को जमा किया, उनके सामने मालिक खिताब करते हैं वाइज अखज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतीतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा माकुम। जनाब साले आते हैं अपनी कौम के सामने खड़े होते हैं, मैं तुम्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा की बशारत सुना करके जा रहा हूँ। जनाब ईसा कौम के सामने आते हैं, कहते आना मुबश्शिरम बिरसूलिही याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। जनाब इब्राहीम कहते हैं अल्लाह तुझसे उस रसूल को मांगता हो जिसके बारे में तूने कहा वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। गोया के कायनात में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके आने वाला वक्त गुज़रे वक्त से बेहतर होगा। अगर कोई इस कायनात में है तो मेरा और आपका पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जिसका आने वाला वक्त भी बेहतरीन है, मौजूदा वक्त भी बेहतरीन है और कायनात में गुज़रा वक्त भी कायनात से बेहतरीन है। जैसे शायर ने यूं अपने अंदाज में बयान किया, शायर कहते हैं कि शायर ने इस अंदाज को यूं बयान किया, शायर ने उन अल्फाजों को यूं बयान किया। मैं बिल्कुल 100 से ऊपर स्पीड में गुफ्तगू कर रहा हूं ताकि मैं चंद बातें मुख्तसर वक्त में आपके गोशो गुजार कर सकूं। शायर ने हुजूर अकरम नबी अकरम शफी आज़म जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा मकीन गुंबदे खजरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ व सना यूं बयान करता है, कहता है कि चेहरा है अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं बहरान तकद्दस का नगी है, माथा है वहदत की तजल्ली का है वर्क, आरिज हैं वल फजर की आयत की अमी है, गैसू हैं वल लैल के बिखरे हुए साहे, अबरू हैं कौसैन शबे कद्र खुली है, गर्दन है पर फर्क ज़बी औज सुरैया, लब है सूरत याकूत शुआओं में धुले है, कद है नबुव्वत के खदो खाल का मेयार, बाजू है तौहीद की असमत के अलम है, सीना है रमज़े दिले हस्ती का नगीना, पलकें हैं अल्फाज रुखे लोहे कलम है, बातें हैं तूबा शिक्षक की हुई कलियां, लहजा है यस्ता की ज़बान बोल रहे हैं, खुतबे है सावन के उमड़ते हुए बादल, क़िरात है असरार जहां खोर रहे हैं, ये दांत शराज़े शबनम के तराशे जैसे याकूत की वादी में दबकते हुए हीरे, शर्मिंदे ताबे लबे दंदान पैगंबर, हरफे बसना खानी खामा बसरीरे, ये मौजे तबस्सुम है ये रंगों की तनक है, ये अक्स बताने थे कि ठहरा हुआ मौसम है, ये शुक्र के सजदे है कि आयात की तनजील, ये आँख में आंसू है कि इल्हाम की रिमझिम, कहने को मलबूस बशर ओढ़ के आया लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं। उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत महताब का टुकड़े तेरे
कदमों में गिरे हैं। कहने को फाकों पे गुजरी तेरी रातें, इस्लाम मगर अब भी नमक खार है तेरा। तूने ही सिखाई है तमीज़े मनु यज़्दा, इंसान की गर्दन पे सदा बार है तेरा। कहने को तेरा फख्र तेरे फख्र का बाइस, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा। कहने को तेरे सर पे है दस्तार यतीमी, लेकिन तू जमाने के यतीमों का सहारा। आइए मसलक अहलुल हदीस का मनहज क्या है, मसलक अहलुल हदीस की दावत क्या है, मसलक अहलुल हदीस का पैगाम क्या है। मुझे मुर्तद कहा गया, आपने कहा आपने इमाम अबू हनीफा को इमाम आज़म कहना छोड़ दिया है, आप इस्लाम से खारिज हो गए। मेरे खिलाफ कुफर के फतवे देवबंद के मदारस से शाया हुए। मुझे कहा गया आपने इमाम अबू हनीफा को इमाम आज़म कहना छोड़ दिया है, आप मुर्तद हो गए, दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। अरे मुसलमानों सोचो तो सही, मेरे भाइयों में आपके सामने बड़ी वजाहत से बात रखना चाहता हूँ। इस मजमे के अंदर देवबंदी होंगे, इस मजमे के अंदर इस मजमे के अंदर मस्तक बरेलवी के हजरात होंगे, अहले सुन्नत से ताल्लुक रखने वाले होंगे। मैं आपके सामने हाथ बांध करके इल्तिजा करना चाहता हूँ, आपके सामने हाथ बांध करके एक जो है अर्ज रखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता अभी खड़े होकर के हाथ को उठाओ, मैं ये नहीं कहता अभी यहाँ मजलिस में फैसला करो, तुम्हें वक्त देता हूं अभी घर में जाना, जब बिस्तरे सराहट पे सोना, सोने से पहले लाइटें बंद होगी, आंखों का आंखें बंद करके जरा दिल की तसव्वुरात की खिड़कियों को खोलना, फिर सोचना मैंने कलमा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का पढ़ा है, नमाज हनफियों की पढ़ता हूँ, मैंने कलमा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का पढ़ा है, शरीयत हनफियों की मानता हूँ, मैंने कलमा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का पढ़ा है, अज़ान हनफियों की होती है, मैंने कलमा मोहम्मद मुस्तफ़ा का पढ़ा है, मेरी फौतगी हनफिया की होती है, मैंने कलमा मोहम्मद मुस्तफ़ा का पढ़ा है। मेरे पैदा होने से कब्र के अंदर दफन होने तक एक भी सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं है। फैसला करना कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम तो है या मसलक अहलुल हदीस मोहम्मद के गुलाम है। ये आपके दामन में सवाल छोड़ करके जा रहा हूँ। आइए, मैंने कोई हवा के अंदर बात नहीं कर दी है कि मैंने ऐसे जज्बात में मजमा देख कर बात कर रही हूँ। अपने अल्फाजों का जिम्मेदार रहूंगा, अपने एक एक बात का जिम्मेदार रहूंगा। आप जाइए, जाकर के पूछिए, अरे देखो तो सी पैगंबर लेकर के क्या आए हैं, अगर देखो तो सी हमने किस रसूल को माना है। आप कहते हो रसूल आजम को छोड़ दो, एक इमाम को आजम मान लो, हम इमाम की ताज़ीम करते हैं। मैंने मसलक अल हदीस के से ये सबक सीखा है। मसलक अल हदीस जो है पैगंबर को मानते हैं, पैगंबर के सहाबा को मानते हैं, पैगंबर के सहाबा के जो है आगे तबा ताबीन को मानते हैं, तबा ताबीन से आगे गुजरने वाले हर एक इमाम को मानते हैं। लेकिन हमारा एक सादा सा पैगाम ये है, हमारा एक सादा सा पैगाम ये है, मसलक अल हदीस का मनहज ये है, मसलक अल हदीस की सादा सदावत ये है, ये अल्लाह का कुरान है, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान है। आओ पूरी दुनिया के जो है लोगों को चैलेंज करते हैं, मसलक अल हदीस के अंदर कोई एक बात कुरान के खिलाफ साबित करना तुम्हारा काम है, कोई एक बात पैगंबर के फरमान के खिलाफ जो है साबित करना तुम्हारा काम है। सुबह सूरज निकलने से पहले माफी हम करेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अहले हदीसों के दो उसूल, अहले हदीसों के दो उसूल, किताब और सुन्नत, उलमाए अहले हदीस। हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन मसलक अल हदीस को ये शरफ हासिल है, मसलक अल हदीस को अल्लाह ने ये मनसब दिया है, मसलक अल हदीस को अल्लाह ने ये एक बड़ा तोहफा अता फरमाया है। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, इसका मतलब क्या है? अब अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं है, अब अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अब अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, अब अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं है, अब अल्लाह के अलावा कोई जो
जो है इज्जत का मालिक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई हमें नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। हम इस बात पर पक्के हो गए। हमने कहा, हमने अल्लाह को ऐसे माना जैसे रसूलुल्लाह ने कहा, हमने पैगंबर को वैसे माना जैसे सहाबा ने बताया है, वैसे माना जैसे सहाबा ने माना, वैसे माना जैसे सहाबा ने माना। आइए मिशकात, आइए हदीस की 5 किताबें हर मदरसे के अंदर पढ़ाई जाती हैं। मैं 5 किताबों में से ये दावे के साथ कह रहा हूँ, रब्बे मोहम्मद की कसम है, उलमा से सीखे। इस स्टेज पर आकर अल्लाह ने मुझे वो दौलत अता फरमाई है, इस स्टेज पर आकर अल्लाह ने मुझे वो कामिल हिदायत की जो अजमत वाली जो है तौफीक बख्शी है। आइए 5 हदीस की किताबें, किसी एक हदीस से मैं कहता हूँ उलमा इस बात के जिम्मेदार, उलमा की मौजूदगी में ये बात कह रहा हूँ, उलमा की निगरानी के अंदर ये बात कहने लगा हूँ, हदीस की 5 किताबों के अंदर कोई एक सही हदीस साबित नहीं कर सकते जिसके अंदर पैगंबर ने रफुल यदैन के बगैर कोई एक नमाज भी अदा की हो। लाओ तो सही कुछ हमारे सामने, कुछ लाओ तो सही हमारे सामने। और मैं आज इस मजमे के सामने ये बात कहने वाला हूँ, इस दुनिया में किसी माँ ने वो बच्चा नहीं अभी तक जना जो दलाइल की दुनिया के अंदर मस्तक़िल हदीस के उलमा का मुकाबला कर सके, दलाइल की दुनिया के अंदर मस्तक़िल हदीस के सामने आकर खड़ा हो सके। हम ना काबर की बात करते हैं, न कब्र के पुजारियों की बात करते हैं। ये स्टेज वो है जिस स्टेज पर जब भी आप आएंगे आपको ये अल्लाह के कुरान की बात मिलेगी, ये जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात मिलेगी। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। कहा गया जहाँ आप गए वो तो सहाबा के मुनकर है। नाउज़ बिल्लाह, आपने भी कारी साहब की ज़ुबान से अज़मत सहाबा सुनी, मैंने अज़मत सहाबा सुनी है। अगर मैं ख़त्म नबुव्वत के मसले पर मसलकिल हदीस के उलमा के नाम गिनना शुरू कर दो, कसीर तादाद में आप आ सकते हैं। अज़मत सहाबा के उन्वान पर अगर हक नवाज जंगवी को जंग की गलियों के अंदर घसीटा गया है, मौलाना अब्दुल्ला की दाढ़ी भी तो अज़मत सहाबा के लिए जो है काटी गई है। तुम्हें ये अज़मत सहाबा की कुर्बानी क्यों नजर नहीं आती है? अज़मत सहाबा के अंदर, किरदार ख़त्म नबुव्वत के अंदर, किरदार पाकिस्तान के अंदर अगर आप तारीख को उठाएंगे सफ़े फारिस्त आपको मस्तक़िल हदीस इंशाअल्लाह नजर आएगा। आइए मैं दावत देना चाहता, आप सोचिए, फिक्र कीजिए। मैंने 2 साल तक इस पर रिसर्च की है। मैं अपने शाखुल हदीस के पास पहुंचा, मैंने कहा हजरत मेरे सामने ये चंद हदीसें आई हैं, ये हदीस फ़िका इसके ख़िलाफ़ है, जो फ़िका के मसाइल इस हदीस के ख़िलाफ़ आ रहे। मैंने तकरीबन 87 के करीब वो मिसाइल जमा किए जो हिदाया और फ़िका की किताबों के हदीस के ख़िलाफ़ हैं। मुसलमानों, वो रसूल तो वो है जिसके बैठे हुए फारूक आज़म तौरात का मुतालिया करे, पैगंबर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाए। कैसे हो सकता है कि वो सही किताब को पढ़ने वाला उमर पैगंबर के सामने उसका तिलावत करता है, पैगंबर जलाल में आ जाते हैं। पैगंबर कहते नहीं मेरी नबुव्वत के बाद किसी की नबुव्वत नहीं है, मेरी शरीयत के बाद किसी की शरीयत नहीं है, मेरी किताब के बाद किसी की किताब नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम बरहक है, ईसा अलैहिस्सलाम बरहक है। जब मेरी नबुव्वत आई, जब मुझ पे शरीयत नाजिल हुई है, अब क़यामत की सुबह तक जिसकी शरीयत का डंका बजेगा उसे दुनिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम से जानती है। वो बर्दाश्त नहीं किया। सही किताब थी, अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब थी। पढ़ने वाले मैं और आप नहीं है, पढ़ने वाले गुनाहगार नहीं है, पढ़ने वाले खताकार नहीं है। पढ़ने वाला वो है जिसे पैगंबर की मुराद कहते हैं, पढ़ने वाला वो है जिसे पैगंबर की मुराद कहते हैं। तिलावत करने वाला वो है जिसको नबी यूं मांगते हैं। अल्लाह अगर इस्लाम को इज्जत देना चाहता है, अल्लाह अगर इस्लाम को इज्जत देना चाहता है, यह जुमला इतना बड़ा जुमला है, इस कनात की रौनकों पर बखेर आ जाए। इस जुमले की रौनक कनात की रौनकों से ज्यादा होगी। पैगंबर कहते हैं अल्लाह अगर इस्लाम को इज्जत देना चाहता है, इस्लाम को मयार देना चाहता है, इस्लाम को वकार देना चाहता है, इस्लाम को रहती दुनिया तक फैलता हुआ
देखना चाहता है मैं पैगंबर की झोली में उमर को डाल दे। उमर को मांग रहा, वो उमर तिलावत कर रहे, वो उमर तिलावत कर रहे जो कहते या रसूलल्लाह मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। और उसने जान से ज्यादा मोहब्बत की है। हमारी तरह की मोहब्बत नहीं थी। हम झंडिये भी लगाते हैं, हम जनाब अली मिलाद भी मनाते हैं, उर्स भी मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर रसूल की ज़ात को मानने से इनकार करते हैं। हम पैगंबर के नाम को इस्तेमाल करके हम अपने मफादात हासिल कर रहे हैं। हम पैगंबर की इस्लाम को बदनाम करके अपने मफादात को हासिल कर रहे हैं। आइए मस्तक अल हदीस की स्टेज पर आइए, मस्तक अल हदीस की मुकद्दस जमात में शामिल हो जाइए। रब्बे मोहम्मद की कसम मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वो इस रहती दुनिया में वो जमात है जिसके बारे में पैगंबर ने कहा था जो शख्स भी मैं मोहम्मद के साथ, मैं मोहम्मद की सुन्नत को नहीं छोड़ेगा, मेरे कुरान को नहीं छोड़ेगा, मेरी सुन्नत को नहीं छोड़ेगा, मेरे सहाबा के रक्षे कदम को नहीं छोड़ेगा, मैं 100% तहिया के साथ ये बात कह रहा हूं। अगर इस धरती पर इस वक्त आप कोई जमात देखोगे तो वो जमात आपको मस्तक अल हदीस की शक्ल में नजर आएगी, जो सही कुरान सुन्नत के मुताबिक चल रही, जिसका मनहज ये है कुरान सुन्नत है, जिसकी दलील कुरान सुन्नत है, जिसकी बात कुरान सुन्नत है, जिसका पैगंबर ने आखिरी जुमला आखिरी जिंदगी के अल्फाजों में कहा था, ऐ सहाबा तुम्हें एक दावत दे करके जा रहा हूं, ना क़यामत तक मेरे कुरान को छोड़ना, ना मैं मोहम्मद के फरमान को छोड़ना, ना मेरे कुरान को छोड़ना, ना मेरे मोहम्मद के फरमान को छोड़ना। दुनिया के हर बड़े आलिम का कौल माना जा सकता है। अरे आप कहते हो इमाम की बात नहीं मानते, मैं तो एक बुजुर्ग की बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं तो एक 10 साल के बच्चे की बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं काम करवा रहा था, मेरे मदरसे के तालिब इल्म ने मुझे कहा उस्ताद जी अगर इसकी बजाय वहाँ ये काम कर लिया जाए तो कैसा था, मुझे मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन जो बच्चे ने मशवरा दिया वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने जिसके सामने रखा उसने कहा उस बच्चे ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है। हम तो 10 साल के बच्चे की वो बात मानने के लिए तैयार है जो बात सही आती हो। आप कहते हैं इमाम की बात नहीं मानते, हम इमाम की हर बात मानते हैं, मानने के लिए तैयार है। इमाम की हर बात की इज्जत करते हैं, इमाम की हर बात का अदब करते हैं, इमाम की हर बात का एहतराम करते हैं, इमाम की हर बात को अपनाते हैं, अपनाना चाहते हैं, आइंदा भी अपनाएंगे, लेकिन सिर्फ वो बात इमाम की नहीं मानेंगे। आप लाओगे रद्दी की टोकरी में डालकर पांव की ठोकर से उड़ाना सवाब की नीयत से सादा समझूंगा अपने लिए जो इमाम की बात कुरान के खिलाफ होगी या प्यारे मोहम्मद के फरमान के खिलाफ होगी। हम वो बात नहीं मानते, सिर्फ वो नहीं मानते। आप ये ना कहे कि इमामों को नहीं मानते, ऐसे क्यों इल्जाम लगाते? ये बात तो बिल्कुल गलत है कि इमामों को नहीं मानते, ये बिल्कुल गलत इल्जाम है। आप वो बात लाइए जो हम कहते हैं, हम जो दावा कर रहे हैं। हज़रत शाह साहब सैयद सब्तैन शाह साहब हफीज़हुल्लाह मसलक अहल हदीस की जान है, अल्लाह ने उनसे काम मसलक के लिए आइंदा भी दुआ करे अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह उनका साया हमारे सरों पे हमेशा सलामत रखे। ऐसे लोग जमात की जान होते हैं जो जमात को लेकर चलते हैं। ऐसे लोग कायद के ऐसे लोग वो लोग होते हैं जो अपने पीछे लोगों को साथ लेकर इस मसलक के ऊपर साथ लेकर चलते हैं। मैं उनके साथ था, उन्होंने अक्सर बयानात में कहा करते थे आप लाओ इमाम की बात हम मानने के लिए तैयार हैं। साथ ये भी कहा करते थे हम बड़े दावे से ये चैलेंज करते हैं तुम कुरान की एक बात, तुम कुरान हदीस की एक बात मसलक अल हदीस के खिलाफ लाओ, हमें बताओ, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, उस बात से पीछे हटेंगे। आपने हमारी रहनुमाई की है, हम तो हज़ारों मसाइल में आपको बता रहे हैं ये मसाइल हदीस के खिलाफ है, ये मसला हदीस के खिलाफ है, यहाँ हदीस कुरान के खिलाफ आ रहे हैं, लेकिन आप कहते नहीं जी इमाम इमाम होता है। अरे मैं कहता हूँ इमाम इमाम क्या चीज़ होती है? यहाँ सहाबा के सामने खड़ा हो जाता है। हजरत उमर कहते जिसने मेरे मोहम्मद को कहा मोहम्मद फौत हो चुका है मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अबू बकर ने यह नहीं कहा उमर तो बड़ी इज्जत वाला है, उमर तो बड़ी ज़ियानत वाला है, उमर तो बड़ी दयानत वाला है, उमर तो बड़ी हिकमत वाला है, उमर तो बड़े अमल वाला है, उमर बड़ी हिम्मत वाला है, इस्लाम पे चलने वाला है। सैयदना सिद्दीक अकबर सामने खड़े हुए, उमर तेरी बात में वजन नहीं है, मैं इस बात पर दलील देता हूं, अगर मेरी बात दलील हो तो मान जाइए। मिंबर रसूल पे यूं खड़े हुए कहा लोगों जो मोहम्मद की इबादत करते हैं उनके मोहम्मद आज फौत हो चुके हैं, जो अल्लाह की इबादत करते हैं उनका
کا اللہ آج بھی زندہ ہے, قیامت تک ان کا اللہ زندہ رہے گا. حضرت عمر نے یوں تلوار کو پھینک دیا, گردن کو جھکا دیا, کہا آج اگر ابو بکر میری اصلاح نہ کرتے میں محمد کا عمر ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جاتا. پیچھے ہٹ گئے. ہمیں مسلمانوں کو حکم ہی ہے, جہاں قرآن کہے وہاں رک جاؤ. کیوں جی یہی ہے نا جی, بلند آواز سے بولے, یہی ہے نا, جہاں قرآن کہے وہاں رک جاؤ, جہاں حدیث کہے وہاں رک جاؤ. ہمیں چاہیے ہم نے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے اس رسول کی عزت دل سے کریں, جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے اس رسول کے احترام دل سے کریں. حضرت قاری صاحب شان صحابہ پہ جب جملے کہہ رہے تھے اس وقت وہاں بیٹھے میرے دل میں بھی جذبہ آیا, میں بھی صحابہ کے بارے میں چند باتیں عرض کروں. میں سپاہی صحابہ کے سٹیج پر 7 سال تک خطابت کی ہے. ہم نے عظمت صحابہ کے لیے کام کیا ہے, لیکن ہم نے صحابہ کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے, ہم نے صحابہ کے پیغام کو نہیں سمجھا ہے. صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے پیغمبر کی نماز کو دیکھا, صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے پیغمبر پہ وحی کو اترتے ہوئے دیکھا, صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے پیغمبر کی عظمت کو دیکھا, صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے پیغمبر کو جہاد میں جاتے ہوئے دیکھا, صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے پیغمبر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے پیغمبر کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا, صحابہ تو وہ تھے جو پیغمبر کو دعوت دیتے ہوئے دیکھا, صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے پیغمبر کو طائف کی گلیوں میں پتھر کھاتے ہوئے دیکھا, صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے مکے میں پیغمبر پہ مظالم ہوتے ہوئے دیکھا, صحابہ تو وہ تھے جو مدینہ میں پیغمبر کے ہم سفر بنے, صحابہ تو وہ تھے جو مدینہ میں پیغمبر کے ساتھ رہے. گویا کہ صحابہ نے پیغمبر کی پوری زندگی کو محفوظ کر کے امت کے سامنے رکھ دیا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں خدا کو ایسے مانو جیسے مصطفیٰ نے مانا ہے, مصطفیٰ کو ایسے مانو جیسے صحابہ نے مانا ہے. اللہ مجھے آپ کو اس قافلہ راہ حق کے ساتھ ہمیشہ زندگی ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جب دنیا سے جائیں اللہ سے یہی ایک دعا ہے, اللہ سے یہی التجا ہے, اپنے مالک سے یہی ایک خواہش کرتے ہیں, جب دنیا سے جائیں آخری وقت ہو تو مالک اس قافلے کے ساتھ دنیا سے لے کر جائے. وما علینا الا البلاغ. دلی جذبات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے محترم جناب سہیل معاویہ ہاشمی صاحب, دعا سارے مل کے کرو اللہ تعالیٰ اس عالم دین کو حق پر استقامت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.